السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، آج کی اس نشست میں پھر سے آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. میرا نام جیسے کہ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں ابو سعید عبد الرازق سوداگر ہے، اور ہمیں دا قرآن کویسٹ کے اس انیشیٹو پر دا قرآن کویسٹ کو بصدر شکریہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے حامی بھری اور بلا تأمل فوراً اپنے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے مستعد ہو گئے. آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جس چیز پر ہم بات کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہوگا فونیمز. اصل میں فونیم ایک ایسے چھوٹے سے چھوٹے ساؤنڈ کو، چھوٹی سی چھوٹی آواز کو کہتے ہیں جو ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف الفاظ کی، کسی بھی لفظ کی پروننسیشن میں فرق پڑتا ہے، بلکہ اس کے معانی، اس لفظ کے معانی بھی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک ورڈ لیں، ابھی ایک کمپیوٹر میں اور آپ کی موبائل فونز میں بہت کامنلی یوزڈ ہوتا ہے ورڈ یہ فائنڈ. آپ کوئی چیز فائنڈ کرنا چاہتے ہو، فائنڈ. اس لفظ کو اگر میں اس لفظ کا جو شروع کا ساؤنڈ ہے، شروع کا لیٹر ہے، وہ لیٹر تو ایف ہے، اس کا ساؤنڈ جو ہے اس کو بدل کر یا لیٹر ہی کو بدل کر میں آگے اس کے ایم لگاؤں تو نہ صرف لفظ بدلا ہے. پہلے تو فائنڈ تھا، ایم لگانے کے بعد مائنڈ ہوا. اب یہ لفظ نہ صرف بدلا ہے بلکہ اس کے مکمل طور پر معنی بھی بدل گئے ہیں. پھر سے اس کو بدلیں، آپ مائنڈ کو ڈی اخیر سے ہٹا دیں، آپ وہاں پر ای لائیں، آپ مائنڈ ہو گیا. ایک وقت تھا وہ فائنڈ تھا، اس کے بعد وہ مائنڈ بنا، پھر اب یہ مائنڈ بن رہا ہے. تو اسی چیز کو عموماً فونیم کہا جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج ہم کچھ فونیمز جہاں سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہیں اس بات کو آپ اپنے ذہن نشین کرتے چلیں کہ انگریزی کے حروف کو دیکھ کر کے الفاظ کی پروننسیشن پتا کرنے کی، الفاظ کو پروناؤنس کرنے کی غلطی نہ کریں. چھوٹے موٹے الفاظ ہیں، روزمرہ کے استعمال میں آنے والے الفاظ ہیں، جن الفاظ کو آپ جانتے ہیں وہ یقیناً آپ کئی دفعہ بسا اوقات صحیح ان کو پروناؤنس کر لیں گے. مگر جو الفاظ آپ کے استعمال میں نہیں ہیں یا جو الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، اگر آپ ان کو صرف سپیلنگ دیکھ کر کے ہی ان کی پروننسیشن کو سمجھنے کی، ایسے ہی ان کی پروننسیشن خود سے کرنے کی کوشش کریں گے تو میں بتاؤں آپ کو کہ بسا اوقات آپ غلطیوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. انہی غلطیوں کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے یا انہی غلطیوں کو دوسرے معنوں میں دور کرنے کے لیے ہم نے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے فونیمز لانے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیے، اب اس ہفتے کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم فونیمز سیکھیں گے سب سے پہلے، اور فونیمز ہی میں ہمیں کانسوننٹس سیکھنے پڑیں گے، حروف صحیحہ سیکھنے پڑیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی حروف العلہ سیکھیں گے جنہیں ہم واولز کہتے ہیں. اس کے بعد ان پر کچھ ہلکی پھلکی مشقیں کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم انگلش کے گرامر کو لے کر کے کچھ اسباق سیکھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا آج کا جو سب سے پہلا درس آپ کے سامنے ہوگا، یا پھر اس ہفتے کا سب سے پہلا درس جو آپ کے سامنے ہوگا، وہ فونیمز ہی کو لے کر ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں 26 حروف آتے ہیں، مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان 26 حروف کا کل ملا کر پروننسیشنز کے حساب سے نمبر بنتا ہے، عدد بنتا ہے 44.
यानी हैं तो ये 26 हरूफ, मगर आप इनकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इनको काउंट करते जाए, इनकी गिनती करते जाए, तो 44 ऐसे साउंड्स बनेंगे जिनको आप सुनकर, जिनके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। अच्छा, 44 में से 24 कॉन्सोनेंट्स ही हैं, और बाकी 5 जो वावल्स हमने पता है हमें, ए ई आई ओ यू, इन 5 वावल्स ही के 20 साउंड्स बनते हैं। तो वो 20 साउंड्स वावल्स के और ये 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स के, कुल मिलाकर 44 साउंड्स इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते हम सीखने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते की वीडियोस के बाद, यानी इस हफ्ते के दिरासे के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को और इसके बाद जो हम आपके साथ बैठ करके सीखें सिखलाएंगे, उन चीजों को सीख लेंगे, तो जैसे मैंने कहा, मैं दावा करके कह सकता हूं कि बिइज़्निल्लाह आप दुनिया का कोई भी लफ्ज, मुश्किल से मुश्किल तरीन लफ्ज हो, अगर ये आप आज का वीडियो और फिर आने वाले 3-4 दिरासा अगर आप ढंग से देख लेंगे, उन पर उबूर हासिल करने की कोशिश करेंगे, उनमें जो सिखलाया गया है उस पर, तो आप दुनिया के किसी भी अंग्रेजी जबान के किसी भी लफ्ज का सही से प्रोनाउंसिएशन अदा कर सकेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। अब फिर चाहे वो इतना बड़ा लफ्ज हो जितना कि एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, इस जैसे लफ्ज का भी आप बासानी प्रोनाउंसिएशन अदा कर लेंगे बिइज़्निल्लाह। चलिए, सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स की तरफ अपनी नजर डालते हैं। मैं यहां स्क्रीन पर इंशाअल्लाह ताला एक एक कॉन्सोनेंट साउंड लाऊंगा। याद रखें, आज जो हम सीख रहे हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं है, बल्कि उन कॉन्सोनेंट लेटर्स के सिर्फ साउंड्स सीख रहे हैं। लिहाजा आपको कई ऐसे हरूफ यहां मिलेंगे या कई ऐसी निशानियां, सिंबल्स यहां मिलेंगे जो देखने में तो आपको हुरूफ लगेंगे, अंग्रेजी जबान के हुरूफ लगेंगे, मगर याद रखें ये हुरूफ नहीं है, बस ये सिंबल्स हैं। ये उनकी शनाख्त है, उन हुरूफ के साउंड्स की, उनकी आवाजों की शनाख्त कैसे बनाई जाए, बताई जाए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन सिंबल्स का सहारा लिया गया है। सबसे पहले आपके सामने आता है जो साउंड, वो है, ये लेटर फी जैसे लगता है, अगर आप इसको लिखने जाएं तो ये लेटर फी जैसे लगता है, मगर याद रखें, यकीन करें मेरी बात का, मैं पी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पी कहता तो फिर आप तो उसको फी के हिसाब से प्रोनाउंस करते। मतलब उसका यूं हुआ कि जब आप उसको पी ए लिखेंगे तो पापा नहीं प्रोनाउंस करेंगे उसको। लेटर अगर फी है और उसका साउंड भी अगर पी है तो पियापा पिया पिया होगा फिर, है ना। तो मैं बात ये बता रहा हूं, इसकी आप मिसाल अगर उर्दू जबान, अरबी जबान से अगर लेनी समझना चाहें तो बड़ा आसान सा इसका मसला है, अभी 1 मिनट में हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अरबी जबान का हुरूफुल हिजा में से सीन ले लें आप। लफ्ज हर्फ है सीन, मगर उस हर्फ का साउंड क्या है, उस हर्फ सीन का साउंड क्या है। आप अगर कहते हैं कि उसका साउंड सीन है, तो जब हम बिस्मिल्लाह लिखते हैं या बिस्म या इस्म ही लिखते हैं, तो उस पर सुकून जब लगाते हैं, या फिर सीन को आप दम्मा ही दे दें, सीन को आप दम्मा ही दे दें, सीन दम्मा, सीनू क्यों नहीं कहते आप। सीन के साथ जब दम्मा लगकर आता है तो आप उसको सू क्यों कहते हैं, उस पर जब कसरा लगता है तो आप उसको सी क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस हर्फ का जो साउंड है वो सिर्फ है, बस। जीम का साउंड सिर्फ ज, ज, बस। उस पर फतहा लगेगा तो ज बनेगा, कसरा लगेगा तो जी बनेगा, दम्मा लगेगा तो जु बनेगा, सही है ना। तो उसी हिसाब से, बिल्कुल उसी हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं वो साउंड्स हैं, इनका साउंड बस उसी हद तक है। पहला साउंड जो मैंने आपके सामने रखा है, याद रखें मैं तरतीबवार नहीं जा रहा हूं, पहला साउंड जो मैंने आपके सामने रखा है वो है सिर्फ। अब जब ये साउंड किसी वावल के साथ मिलेगा, तब उसको उस दिशा में, जिस वावल के साथ ये मिलता है, उस डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर आप कहें, फिर उसके बाद मैंने अगर ई ए खे लगाया
तब जाकर वो फीक बनेगा। या फिर अगर मैंने इसके आगे AST लगाया तब जाकर ये फास्ट बनेगा। अगर ये फी होता, इसका साउंड भी फी होता, तो हम फास्ट नहीं कहते, फीस्ट ऐसा कुछ कहते। ऐसी बात तो है नहीं। यही वजह है कि मैंने कहा कि हम आज सिर्फ साउंड सीख रहे हैं। लफ्ज हर्फ आपके सामने यकीनन फी होगा। अल्फाबेट में अगर आप जाकर के देखें तो हर्फ यकीनन फी है, मगर जब उसका साउंड आप पहचानने की कोशिश करें तो उसका साउंड सिर्फ। इसी हिसाब से अगला साउंड जो आपके सामने आ रहा है वो है ब। मैं मुश्किल से जबरन मैं ब बोल रहा हूं, जबकि ब भी नहीं बोला जाना चाहिए। क्यों? ब उस वक्त बोला जाएगा जब उसके आगे एक ए लगा हो या एक ई लगा हो या कुछ भी एक वावल लगा हो, तब कहीं उस डायरेक्शन में वो साउंड जा सकता है। वरना तो वो सिर्फ बस जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना ही उसका साउंड है। अब उसको आगे आप उसके ई लगाएंगे और फिर उसके बाद आप डी लगाएंगे, तब कहीं जाकर वो बेड बनेगा। ठीक है ना? उसकी एक और दो मिसालें अगर आप लेना चाहें तो बटा, साउंड बी है, लेटर बी है, उसका साउंड सिर्फ है। जब उसके आगे यू आएगा तब कहीं वो जाकर के बनेगा, टी लगेगा तो बट बनेगा, एक और टी, फिर ई और आर लगेगा तब बटर बनेगा। ठीक है ना? चलिए इसी तरह अगले साउंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला साउंड आपके सामने है ठ, ठ। ये टी नहीं है, फिर से याद रखें, इसका साउंड है। देखने में ये टी लेटर, स्मॉल टी लेटर जैसा लगता है, मगर ये टी है नहीं, ये सिर्फ। जब उसके साथ नए हरूफ जुड़ते जाएंगे तब फिर से वो उस दिशा में उसका साउंड बढ़ता जाएगा, फिर जाकर वो एक मुकम्मल लफ्ज की शक्ल इख्तियार करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप टमाटो टमाटो बोलना चाहें, टमाटो टमाटो, तब आप जो है इस लफ्ज को सही तरीके से, बल्कि इस साउंड को सही तरीके से अदा कर रहे होंगे। इसके बाद वाला साउंड लेटर डी जैसे लगता है, मगर इसका साउंड जैसे आप गेस करके देखें, आप खुद बताएंगे मुझे कि हाँ इसका साउंड सिर्फ बस इतना ही होना चाहिए। वो भी तब उस वक्त होगा जब मैं बैक टू बैक के साउंड 10-20 बार लिखूं और तब आप उनको इन सारे साउंड्स को एक साथ प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, तब कहीं जाकर के होगा, वरना तो वो बस इतना ही। उसके आगे अगर आप आई लगाएं, फिर और एक और डी लगाएं, तब कहीं जाकर के वो डेड होता है ना? या फिर डॉक्टर भी अगर होना हो तो जब आगे ओ सी टी ओ आर लगाएंगे तब कहीं जाकर के वो डॉक्टर बनेगा। इसी तरीके से अगला साउंड हमारा एक, देखने में तो वो एक कॉम्बिनेशन लगता है छोटे टी का, यानी स्मॉल टी जैसे लिखते हैं, उसके साथ अगर आपने मैथ्स में इंटीग्रेशन का सिंबल आपको याद है तो इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ, यानी पहले टी आएगा फिर उसके साथ जुड़ते हुए जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल होता है वो आएगा, तब कहीं जाकर के उसका साउंड CH वाला बनेगा। याद रखें, CH भी सॉफ्ट CH बनेगा। CH दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट कहलाता है, दूसरा हार्ड कहलाता है। हार्ड किसी और दिन सीखेंगे, आज सिर्फ सॉफ्ट TH पर बात हो रही है। तो चर्च, चॉकलेट, चॉइस, इस तरह के अल्फाज में जो शुरू में सुनाई देता है उसका रिप्रेजेंटेशन, फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन इससे होगा। मिसाल, या फिर उसको मैं अगर दूसरे मानों में समझाने की कोशिश करूं तो जो आप आज सीख रहे हैं इन साउंड्स की मदद से, फिर कल के दिन और परसों के दिन और इन दिनों में जो आप वावल सीख लेंगे और आगे जाकर आप डिक्शनरी खोल कर देखेंगे तो यही सारे साउंड्स आपको दिखाई देंगे उस डिक्शनरी में। अच्छी वाली डिक्शनरी, मिसाल के तौर पर कैम्ब्रिज की डिक्शनरी हुई, ऑक्सफोर्ड वगैरह की हुई, उनको खोलेंगे तो यही सारी चीजें आपको दिखाई देगी, जिनकी मदद से आप बआसानी खुद बिना किसी की मदद के सारे अल्फाज को, नए नए अल्फाज को प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे और उनमें कामयाब भी होंगे बिइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने च वाला साउंड बतला दिया। आगे जो साउंड आ रहा है वो देखने में तो डी, स्मॉल डी और स्मॉल जेड का कॉम्बिनेशन लगता है, वैसे है भी उसी चीज का कॉम्बिनेशन वो, यानी अगर आप एक ही साथ डी और जेड दोनों
बैक वक्त अपनी जबान से अदा करने की कोशिश करें तो ला महला आपकी जबान से ज का साउंड निकलेगा। एक तरफ डी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेड का साउंड बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस इम्तिजाज के बाद जो साउंड निकल के आता है वो होगा ज। तो ये साउंड जब भी आपको दिखाई दे जी डी और जेड वाला, तो इससे मुराद ये है कि ये ज वाले अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इसकी मिसाल में ब्यूटीफुल एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो जज में देखें, शुरू में जे आया है, आखिर में जी आया है, मगर इन दोनों में यही साउंड इस्तेमाल हुआ है। यही अंग्रेजी जबान की खासियत है, या फिर यही अंग्रेजी जबान का सबसे बड़ा मसला है कि लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। अब हमने जे लिखा तो उसका साउंड तो हमने जे ही के साथ अदा किया, मगर जब आखिर में जी लिखा है, जज के आखिर में जी ई आया है, वहां पर भी हम वो जग नहीं कह रहे हैं बल्कि जज ही कह रहे हैं। लिहाजा ये जो साउंड अभी आपने देखा वो ज ज ज ज ज ज, ज बस इतना ही। उसके आगे जब यू आता है तब कहीं जाकर के वो ज बनता है, फिर आखिर में वो डी जे ई डी जी ई जब लगा है तब कहीं जाकर के वो मुरक्कब मुकम्मल होता है और वो लफ्ज कहलाता है जज। उसी हिसाब से आप जैकेट कह लें, या उसी हिसाब से आप जोवियल कह लें, जोय कह लें, जो भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला साउंड जो आपके सामने होगा, बल्कि अगले 3-4 साउंड्स बड़े आसान साउंड्स हैं। देखने में तो ये खे, स्मॉल खे जैसे लगता है, मगर हकीकत में ये का साउंड का रिप्रेजेंटेशन है, बस उसकी शनाख्त है, बस ये ठीक है ना। ये उसका अपना साउंड है और उसकी वो रिप्रेजेंटेशन है। उसकी मिसालें दुनिया भर की हैं आपके पास। मिसाल के तौर पर आप काइट कह लें, या फिर आप कोस्टल कह लें। जरूरी नहीं है, याद रखें, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे अल्फाज जो भी आप लाएं वो खे, लेटर खे ही से शुरू होने वाले हों, या उनके अंदर लेटर के हो ही हो, जरूरी नहीं है। मैंने अभी कहा था ना कि सी एच एस 2 टाइप के होते हैं, या सीज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो ख है, ये ख काइट के लिए भी आता है, और यही क सकस के लिए भी आता है। सकस, सकस, इसमें तो सी सस होना चाहिए था ना उस हिसाब से। तो यही मैंने कहा कि लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। तो ये जो साउंड है आपके सामने वो ख का साउंड है। उसी हिसाब से अगला साउंड देखने में तो वो जी लगता है, जी देखने में लगता है, मगर है वो ग ग ग, ठीक है। उसके आगे जब आप कोई लेटर और ले आते हैं, खासतौर से कोई वावल ले आते हैं, तो वो इस दिशा में ट्रैवल करने लगता है। मिसाल के तौर पर गोल्फ, गोल्फ, या फिर मिसाल के तौर पर गो, जाने के लिए आप कहें किसी को तो क्या कहते हो, गो। ये जो गो बनता है वो इसी साउंड की वजह से बनता है। इसके बाद वाला साउंड जो आपके सामने है वो है लेटर। देखने में तो एफ, स्मॉल एफ जैसा है, मगर वो साउंड है, साउंड है उसका। एफ उसका साउंड नहीं है, एफ उसका नाम है, उस लेटर का नाम एफ है, जो हमने अपने अल्फाबेट में पढ़ा था। ये जो हम देख रहे हैं आज, वो उसके अपने साउंड का रिप्रेजेंटेशन है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है वो, ठीक है ना। तो हुआ, मिसाल के तौर पर आप फेयर कह लें, फेयर तो है वो, या फिर उसी हिसाब से आप फाइव कह लें, फाइव, ठीक है ना। तब ये उसमें उस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल होगा। इसके बाद आपके सामने जो साउंड आ रहा है वो देखने में तो वी जैसे लगता है, मगर है वो बस। याद रखें, याद है आपको, हमने जब अल्फाबेट सीखे थे तब हमने कहा था कि जब आप वी का कोई भी लफ्ज प्रोनाउंस करने चलें तो याद रखें कि आपके ऊपरी होंठ निचले, आपके ऊपरी दांत निचले होंठों से टकराएं, तब कहीं जाकर इसका साउंड सही से अदा होगा। लिहाजा वेरी, वेरी, ठीक है ना। रिव्यू, रिव्यू, उसी हिसाब से वेस्ट, वेस्ट नहीं कह रहा हूं मैं, एक और लफ्ज होता है जो वेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो ये वेस्ट, वेरी, और फिर उसी हिसाब से वास्ट इन अल्फाज में इस्तेमाल होता है। वॉल्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
اگلا جو ساؤنڈ ہے اس کی اگر آپ شکل دیکھیں تو آپ اگر میتھمیٹکس جانتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں. اور یہ جو ہے اصل میں دو حروف کے کمبینیشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. دو حروف، ایک ہے ٹی، دوسرا ہے ایچ. ٹی اور ایچ جب مل کر آتے ہیں ایک ساتھ، ایچ اور ٹی نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں، ٹی پہلے ایچ اس کے بعد، جب یہ دو مل کر آتے ہیں تو دو طرح کے ساؤنڈز کی سمبھاونائیں ہوتی ہیں، دو طرح کے ساؤنڈز کے امکانات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دوسرا والا جو ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا میں. یہ جو ہوتا ہے اس کو سافٹ ٹی ایچ کہتے ہیں. سافٹ ٹی ایچ، اس کا مطلب یہ ہوا اس کو جب آپ پروناؤنس کرنے چلیں تب یاد رکھیں، عربی زبان جب ہم سیکھتے ہیں، عربی زبان کے حروف الہجا جو ہیں ان کی جب پروننسیشن کرنی ہو ہمیں تو ثالث میں جو ثا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر ثلث میں جو ثا آتا ہے وہی ثا یہاں پر ہے. اب اگر آپ اس کو اردو کے تھ سے ٹٹولنے لگے جس میں ہم ت لکھتے ہیں پہلے، پھر گدھے کی دو آنکھیں جیسی ہوتی ہیں اس والا جو، وہ والا جو ہا لکھتے ہیں ہم، یا پھر ہندی میں تھا، تھی، تھوڑا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، وہ والا تھا انگریزی زبان میں ناپید ہے، انگریزی زبان میں ہے ہی نہیں. لہذا اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انگریزی زبان میں بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھینک یو نہیں کہنا ہے، یہ تھا ہے ہی نہیں، تھینک یو. اگر آپ کہہ رہے ہیں I'm thinking، thinking بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اسی حساب سے a thought، thought، اسی حساب سے ہزار اس طرح کے ساؤنڈ. یہ والا کیا ہے، اس کو thumb کہتے ہیں. thumb نہیں. ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں آپ کو یہ آواز اس طرح سے یا یہ لفظ اس طریقے سے سننے کو مل جائے، مگر یہ اس کا صحیح تلفظ نہیں ہے. صحیح تلفظ اس کا عربی زبان سے لے آئیں آپ، وہاں سے بالکل صحیح چلتا ہے. یہ زبان آپ کی تھوڑی سی باہر نکل کے آئے گی، اسپیشلی جب آپ وہ ساؤنڈ، وہ حرف والا ساؤنڈ ادا کر رہے ہوں جس میں ٹی اور ایچ لگا ہوا ہے، تو آپ وہ ساؤنڈ لے آئیں اور عربی زبان کا جو ثا ہوتا ہے وہ لے کر آئیں، تب آپ کا یہ ساؤنڈ بالکل صحیح نکلے گا. اس کے بعد جو سمبل آپ کے سامنے آیا ہے اس میں جو دوسرے ٹائپ کا ٹی ایچ ہوتا ہے جس کے میں بات کچھ دیر پہلے کرنا چاہتا تھا، کہا تھا کہ بتاؤں گا آگے، یہ وہ والا ٹی ایچ ہے. میں نے کہا تھا ایک کو تو سافٹ ٹی ایچ کہتے ہیں، دوسرے کو آپ گیس کر گئے ہوں گے ہارڈ ٹی ایچ کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں الف با تا ثا جیم ح خ دال، ذال میں کیا کرتے ہو آپ، ذالک الکتاب، ذالی بولتے ہو نا. جب آپ ث بولتے ہو تب بھی آپ کی زبان تھوڑی سی باہر آتی ہے، جب آپ ذ بولتے ہو تب بھی آپ کی زبان تھوڑی سی باہر آتی ہے. یہ وہی بالکل وہی ساؤنڈ ہے یہ ذ. اس حساب سے ٹی ایچ آئی ایس وڈ بی this. THIS is not this. ہندوستان وغیرہ میں بر صغیر میں ہم this کہتے ہیں، that کہتے ہیں، those کہتے ہیں، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے. جو لوگ اس زبان سے واقف ہیں یا پھر اہل زبان جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کے الفاظ کا پروننسیشن ادا کرتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ ذال جیسا ساؤنڈ لے آئیں. وہ ان کی اپنی زبان میں بھی اس طریقے کی تجوید دوسرے معنوں میں موجود ہے. ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ تجوید ہی ہے دوسرے معنوں میں. لہذا جب آپ کہتے ہو لہذا، ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہو تو جب آپ لہذا کہتے ہوئے اپنی زبان باہر نکالتے ہو اسی طریقے سے this، that، those، them، worthy، ٹھیک ہے نا، wealth میں وہ سافٹ ٹی ایچ آتا ہے. جب آپ اس کو ورتھ کہتے ہو اس میں بھی سافٹ ٹی ایچ آتا ہے. جب اس کے آگے وائی لگا دیتے ہو تو یہ وردی بن جاتا ہے. تو اس طرح کے ساؤنڈز پر محنت کرنے کی کوشش کریں. بڑھیا شروع میں یہ دو ساؤنڈز سافٹ ٹی ایچ اور ہارڈ ٹی ایچ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ لگے، مگر یقین کریں میری بات کا، آپ انٹینشن آپ کی اچھی ہو، نیت آپ کی صاف ہو، اللہ عز و جل کی مدد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگی تو یقیناً آپ یہ ساؤنڈز بآسانی ادا کر پائیں گے. اور مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسوں سے جو فارغ ہو کر آئے ہیں ان کے لیے یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے ہمیں مدرسوں میں ث اور ذال وغیرہ کی، ضاد کی
व की प्रैक्टिस करवाई जाती है, लिहाजा ये बड़ा आसान होगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद के अगले जो दो साउंड्स हैं बड़े सिंपल से हैं। लिखा एस जैसे गया है मगर स है इसका साउंड, जैसे मैंने अरबी जबान के हवाले से भी कहा था, सीन का हवाला देकर के, ये बिल्कुल वही है, स है इसका साउंड। इसके आगे जब हरूफ जुड़ते जाएंगे तब इंशाअल्लाह ताला इसका सही साउंड आता जाएगा, इसका अपना साउंड आगे बढ़ता जाएगा। उसी हिसाब से जेड लिखा जाता है, ये छोटा स्मॉल जेड जैसे लिखता है, मगर उसका वैसे वो छोटा जेड नहीं है बल्कि इसका साउंड भी फिर से है। और इसके साथ फिर से जैसे मैंने कहा हरूफ जुड़ते जाएंगे तो यकीनन आवाज उस तरफ को चलती जाएगी। मिसाल के तौर पर जेब्रा, मिसाल के तौर पर जू, ठीक है। ये सब बड़े आसान से हैं, इन पर ज्यादा वक्त सर्व करना नहीं चाहिए। अगला जो है, याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि एक साउंड होता है CH वाला जिसमें छोटा सा स्मॉल टी और उसके साथ एक इंटीग्रेशन का सिंबल बना होता है, उस कॉम्बिनेशन की बात मैंने की थी। अब उसमें से आप ठ का साउंड हटा दीजिए, यानी जो टी जैसे दिखाई देता है उसको हटा दीजिए, सिर्फ वो इंटीग्रेशन का सिंबल रखिए तो ये श बनेगा। क्या बनेगा ये? श। मिसाल के तौर पर शूज में जो लफ्ज, शूज में जो साउंड शुरू में आता है ये वही है। या फिर इसी हिसाब से शव, शव, मैंने फुला शव देखा, तो शव, तो वो जो होता है उस शव में शुरू में जो साउंड आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके अब जो सामने आपके आया है वो है, देखने में तो वो स्मॉल जेड जैसे लगता है मगर इसका प्रोनाउंसिएशन याद है आपको? अरबी जबान, फारसी जबान अगर आप थोड़ी बहुत भी जानते हो तो आपको फारसी जबान से उर्दू जबान में भी काफी, हमने अपने बचपन में काफी हद तक सीखा था वो। जब हम रे जे लिखते तो जे के बाद एक और लेटर लिखते हम जो बिल्कुल रे जैसा ही होता, उसके ऊपर 3 नुक्ते बने होते थे, उसको हम ज कहते थे। उसकी एक मिसाल फारसी जबान से अगर मैं ले आऊं तो वो होगी मुजदा, खुशखबरी, मुजदा कहते हैं ना। आपने अगर गुलिस्तान बोस्तान वगैरह पढ़ी हो तो आपको ये तो बिल्कुल पक्का पता होगा। तो मुजदा कहा जाता है। तो मुजदा में जो ज साउंड आया है वो यहां पर इस्तेमाल होगा। मिसाल उसकी मेजर, मेजर, या फिर फिजन, फिजन, FISSION, फिजन, फ्यूजन, फ्यूजन, या उसी हिसाब से आप ले लें इक्वेशन। बहुत लोग इक्वेशन कहते हैं, याद रखें ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है। तो ये साउंड वहां इस्तेमाल होता है। उसके बाद के जो 2 साउंड्स है बड़े सिंपल साउंड्स, देखने में स्मॉल एम लगता है मगर है साउंड इसका सिर्फ जब इसके साथ हरूफ जुड़ेंगे तब इसका भी साउंड आगे बढ़ते जाएगा। इसके बाद वाला जो है वो है एन, देखने में लगता है साउंड सिर्फ वो जब उसके साथ हरूफ जुड़ेंगे तब वो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे नॉट या फिर न्यू, न्यू, नॉट वगैरह में। इसके बाद वाला जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूर बात है कि ये देखने में तो एन जैसा ही है, जैसे हम एन अभी हमने लिखा था, स्मॉल एन जैसा लिखा था हमने उसका सिंबल, ये देखने में तो वैसा ही है। ये इसमें एक चीज ये है कि जब आप वो साउंड लिखते हैं तो आखिर में नीचे को उसकी छोटी सी दुम जो अंदर की तरफ मुड़ती है वो आती है। इसका मतलब ये है कि जब ये साउंड आपको दिखाई दे तो आप उस साउंड को आप एन और जी के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। एन और जी, मिसाल के तौर पर किंग होता है, या मिसाल के तौर पर फिंग कह लें आप, या फिर उसी हिसाब से आप सॉन्ग कह लें, ठीक है। और बहुत सारी इसकी मिसालें आती हैं। तो ING के उमूमन जो अल्फाज हैं ING पर खत्म होने वाले, उन अल्फाज में ये साउंड पाया जाता है। दूसरे और भी होते हैं इंशाअल्लाह ताला, मिसाल के तौर पर शायद पिन्याता में भी ये साउंड आता है। किसी और दिन बात करेंगे इस बारे में इंशाअल्लाह, लफ्ज पिन्याता के बारे में इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल यहां बात ये देखने की है कि ये जब साउंड आता है तो NG मिल करके और नाक में जैसे साउंड जाता है वैसे वाली इसकी बात होती है। मिसाल के तौर पर आप अगर हिंदी से वाकिफ हो, हिंदी के जो शुरू में अ आ इ ई जो 12 वावल्स आते हैं उसमें अहा पर जो खत्म होती है बात, अहा से पहले वाला जो है अंग, कभी कभी अम पढ़ते हैं, कभी कभी अंग पढ़ते हैं, जैसे अंदर में अंग हो गया ना वो, या फिर अंग जब लिखते हैं तो भी अंग हुआ हो, और अलग अलग हिसाब से लिखते हैं तो उस हिसाब से वो जो अंग नेजल साउंड है नाक के अंदर जो जाता है ये वही साउंड है। इसके बाद के 3-4 साउंड्स बड़े सिंपल से हैं, आखिरी वाला थोड़ा सा मैं उस पर बात करूंगा। अगले 3 साउंड्स बड़े आसान हैं इंशाअल्लाह ताला, हम अभी 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाला साउंड है H। देखने में तो ये H लगता है मगर इसका साउंड अगर आप पता करना चाहते हैं तो उसका साउंड सिर्फ
بس इसका इतना सा साउंड है। इसके साथ जब حروف जुड़ेंगे तब ये अल्फाज बनते जाएंगे और इसका साउंड सही तरीके से प्रोनाउंस होता भी रहेगा। कई दफा इसका साउंड गिर भी जाता है और ये एच ऐसा है कि अलग अलग हरूफ के साथ मिलता है तो अलग अलग खेल दिखलाता है। मिसाल के तौर पर सी एच के साथ अलग खेल दिखलाया उसने। सी एच दो तरह का होता है मैंने कहा, फिर टी एच ये भी दो तरह का होता है कहा मैंने, और ये एच इसका अपना साउंड है। इसके बावजूद भी एच कई दफा प्रोनाउंस भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर ऑनेस्ट में हुआ, ऑनर में हुआ, एयर में हुआ, इन अल्फाज में एच प्रोनाउंस भी नहीं होता। बहुत सारे इस तरह के अल्फाज भी मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला साउंड देखने में तो ये स्मॉल एल जैसा है मगर इसका साउंड सिर्फ जैसे हम अब तक सोचते समझते आए हैं ल, इसका साउंड भी सिर्फ ल है बस। इसके आगे हुरूफ जुड़ेंगे तब ये सही बनेगा। मिसाल के तौर पर लिंक, जब आई एन के इसके साथ मिलेगा तब कहीं जाकर के लिंक बनेगा, अदरवाइज तो ये सिर्फ ल रहेगा। इसके बाद जो लिखा जा रहा है आपके सामने वो है, देखने में तो फिर से स्मॉल आर जैसा लगता है मगर इसका साउंड सिर्फ र। जब आप इसके साथ हुरूफ जोड़ेंगे तब कहीं जाकर के मिसाल के तौर पर रीप, रीप या फिर रैप या फिर रीड, इस तरह के हुरूफ में या इस तरह के अल्फाज में इसका साउंड आता है। इसके अलावा डब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट साउंड है। जब भी आप डब्ल्यू के किसी भी लफ्ज का, देखने में तो ये डब्ल्यू, फिर से मैं वही कहानी दोहराऊंगा कि देखने में डब्ल्यू लगता है मगर ये डब्ल्यू है नहीं है, ये इसका सिर्फ साउंड है और इसका साउंड सिर्फ वो जैसे हुआ था वी के टाइम पर, ये उसी तरीके से हो गए। जब इसके साथ हुरूफ जुड़ेंगे तब ये सही सही से प्रोनाउंस होने में आपकी मदद करेगा, प्रोनाउंस करने में आपकी मदद करेगा। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, जब ये आता है, जब भी इस साउंड को आपको बोलना है, एक पते की बात यह है जब भी आप इस साउंड को प्रोनाउंस करेंगे आप इस बात का तयक्कुन करते चलें कि जब आप अल्फाज जो भी जिनमें भी डब्ल्यू हो वो उस हर्फ पर आए प्रोनाउंस करते हुए, तो आपके अपने मुंह को, आपके अपने होठों को गोलाई की शक्ल देनी होगी। मिसाल के तौर पर वाओ, वाओ, या फिर व्हील, व्हील, मैं व्हील नहीं कह रहा हूं, मैं व्हील कह रहा हूं। उसी हिसाब से एक और वर्ड देता हूं आपको मैं जिसमें दोनों वी और डब्ल्यू आएंगे। जब वी और डब्ल्यू आते हैं तब कहीं थोड़ा सा किस्सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी बात मुश्किल हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा वी की जगह डब्ल्यू का साउंड ले आता है, डब्ल्यू की जगह वी का साउंड ले आता है, मगर आप प्रैक्टिस अगर करते हो तो ये मुश्किल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर रिव्यू, आप कभी इसमें चूकेंगे नहीं अगर आपको खूब प्रैक्टिस हो। रिव्यू, हाउएवर, हाउएवर, मैंने उल्टा नहीं कहा, हाउएवर, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें कि जब भी आप ये डब्ल्यू जैसा लगता है उसका साउंड जब आप अदा कर रहे हो तो आपका मुंह गोलाई की शक्ल इख्तियार करेगा, गोल बनेंगे आपके होंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी साउंड आज का, देखने में तो ये जे लगता है, स्मॉल जे। मैंने याद है आपको पहले दिन भी कहा था कि जब हम येलो बोलते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि खफीफ सा जे इसके अंदर शामिल है, यही वजह है हमने इस बात को कहा था। ये ऐसा साउंड है जो उमूमन वाई के साथ जोड़ा जाता है। अल्फाबेट में जो वाई होता है उसके साथ उमूमन जोड़ा जाता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ वाई ही के साथ आएगा, इसका यह मतलब नहीं है। कई सारे ऐसे अल्फाज हैं जहां पर वाई का शायबा तक नहीं होता मगर फिर भी यह साउंड बड़ी आसानी से घुस कर आ जाता है, उसके साथ हो जाता है साउंड। उसकी मिसालें भी इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर देखेंगे। एक सिंपल सी मिसाल ले लें इस साउंड की, येलो, यस, ठीक है, और रिव्यू, इसमें भी आएगा आपका यह साउंड। और बहुत सारे यू, यू जब आप बोलते हो इसमें आता है ये। तो इस तरह के बहुत अल्फाज मिलेंगे आपको इस साउंड को लेकर के। थोड़ा सा चौकन ना रहें, कई दफा ये साउंड आता है, हल्का सा लिखा होता है उस किसी भी लफ्ज की फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन में, आप जरा ध्यान देंगे तो उसको बड़ी आसानी से सर कर पाएंगे बिइज़्निल्लाहि व तौफीक। चलिए आज का ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें अंग्रेजी जबान को खूब आसान करके सिखलाए ताकि हम इसके जरिए से अल्लाह अज़्ज़ा व जल के दीन की खातिर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की दीन की इशाअत की खातिर हम उठ खड़े हों। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।